be one of our top focus stories here on Times Now. But for the time being, however, let's move on in the bulletin now and tell you about the massive uproar. Over 20 people who have died in two of the Bihar districts, Gopalganj and West Champaran, after consuming suspected spurious liquor. Now remember, there is total prohibition on alcohol in Bihar. But despite that, this tragedy has occurred. Now the opposition has blamed Nitish Kumar's government for these deaths. Let's get you some of the war of words which have been coming in, and we are going to get you live inputs as well. But first up, let's get you what the Bihar Excise Minister has to say. हम लोगों ने जागरूकता अभियान में लोगों की भी गलती है कि जो इस तरह के कुछ लोग जो अवैध शराब का सेवन करना चाहते हैं, जबकि कानूनन यह अपराध है। हमारे सारे बॉर्डर्स नेपाल से लगे हुए हैं जो हैं, या झारखंड से या यूपी से, यहाँ बिल्कुल ओपन बॉर्डर्स हैं और कोई वहाँ पर हज़ारों ट्रक गाड़ियाँ डेली आती हैं। तो सूचना का आधार पर या जो पकड़े जाते हैं, गिरफ्तार होते हैं, इनके स्वीकारात्मक बयान पर हम कार्रवाइयाँ लगातार करते हैं। विपक्ष लेकिन कह रहा है कि इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि लगातार इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, तो इस पर फिर से एक बार विचार करना चाहिए सरकार को। आप लोगों पे कई उंगलियां उठ रही हैं। देखिए, ये विपक्ष का काम है, उनकी अपनी राय है हर मुद्दे पर कहना, लेकिन फ़िलहाल ये जो शराबबंदी है, नशाबंदी है, पुनर्विचार का भी मुद्दा नहीं है। Let me go across to Aditya as well as Saket joining us from Patna. Aditya, to you first. It's shocking to have a minister on camera saying it's just the opposition who's raising questions as if it's no big deal. It is a big deal. 21 lives, 21 families have been devastated by this tragedy which has happened, and ironically all of it in a dry state. They cannot get away by blaming the opposition. Yes, exactly. I mean, the prohibition is something that has been a bone of contention between the opposition and the state government for quite some time, and the opposition has been blaming the government for lack of its will behind the enforcement of prohibition. So they want either do it properly or you don't do it altogether. So this is the difference, the point of contention between the opposition and the government. But that being said, it is of course clear that more than 20 people have died, and I'll tell you one more thing, that the rural inputs, if at all we do consider the rural inputs, there are more than almost close to 30 people who are reported to have died due to this. But then the district administration is waiting for the FSL reports to come, and only after that they'll be able to finally ascertain how many actual casualties were happened due to this spurious liquor. Well, in fact, do stay on with us. Several reactions which are coming in from the opposition parties. They've, of course, trained their guns at the NDA government in Bihar. Listen in. एक हत्या है, एक सिंडिकेट द्वारा प्रायोजित हत्या। वो सिंडिकेट गांव की गलियों से लेकर के पटना के सत्ता शीर्ष तक पहुंचता है। शराबबंदी आपने की हुई है, और उसके बाद अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं तो कौन गुनहगार है, कौन जिम्मेवार है, कहां से सप्लाई हो रही है? क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की कल मैंने टिप्पणी सुनी। ऐसी टिप्पणियां होती है, गड़बड़ चीज पीजिएगा तो चले जाएगा। ये आप सूबे के मुख्यमंत्री हैं, सूबे के मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी है कि सिंडिकेट को एक्सपोज करें, क्योंकि इस सिंडिकेट ने, इसके कार्यशैली से हम वाकिफ, होम डिलीवरी हो रही है, तो किस बात की शराबबंदी है? हम लोग लगातार कहते रहे हैं कि इस तरह का शराबबंदी से अच्छा है आप खोल दीजिए, गवर्नमेंट का राजस्व का भी नुकसान नहीं होगा, और ऐसे भी शराब खुलेआम जितना आसानी से दुकान पर जाके मिलता था उतना ही लोग घर में मंगा ले रहे हैं, और एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ा हो गया बिहार में ये शराबबंदी के कानून लाने से। तो बंद भी नहीं है, लोग मर रहे हैं, और हाथ पर हाथ रख के नीतीश कुमार जी बैठे रहते हैं। देखिए, सूबे में घटित जहरीली शराब कांड अपोजिशन की एक साजिश का परिणाम है। जिस तरीके से उपचुनाव में अपोजिशन का बुरा हाल हुआ, उससे बाद सरकार की किरकिरी कराने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिलवाया जा रहा है। इसमें निसंदेह कुछ अधिकारी भी शामिल हैं, जिनको चिन्हित कर हम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि जो लोग सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह की साजिश रच रहे हैं, उनको सरकार जल्द ही बेनकाब करेगी, और हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। So let me go across to Saket. Saket, this kind of a tragedy which has happened, this does show the complete failure as to the kind of
the kind of शराबबंदी that they had put. आंकड़े बताए जा रहे हैं और जो लोकल्स है वहाँ पर उन लोगों का जो कहना है वो अलग है, क्योंकि जो लोकल्स हमारे जो वहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट वहाँ से जो मिल पा रही है हमें उन दोनों जिलों से, उसके हिसाब से जो आंकड़ा है वो लगभग 30 से ज़्यादा है। मतलब 30 लोगों से ज़्यादा लोगों की वहाँ पर मौत हो चुकी है, जो वहाँ के लोकल्स बताते हैं। लेकिन जो आंकड़ा सरकार की तरफ से आज दिया जा रहा है कि 10 लोगों की मौत गोपालगंज में और 11 लोगों की मौत बेतिया में हुई है, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में दोनों जो आंकड़े हैं वो एक दूसरे को गलत बता रहे हैं। लेकिन सबसे अहम चीज़ जो देखने को मिली है, जो मंत्री हैं यहाँ पर एक्साइज मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने साफ तौर से जो बातें कही है वो उनकी लाचारी दर्शा रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारा ओपन बॉर्डर है नेपाल के साथ, बंगाल के साथ और झारखंड के साथ, तो ऐसे में शराब कब किधर से आ रहा है ये इसको समझ पाना उनके लिए दिक्कत हो रही है। तो ये अपने आप में एक सवाल है कि अगर आप सरकार में बैठे हैं, ड्राई स्टेट बिहार को घोषित किया गया है, यहाँ पर शराबबंदी लागू है, तो ऐसे में ओपन बॉर्डर है तो आप उस पर निगरानी कीजिए, आप वहाँ पर पुलिस की तैनाती कीजिए और पूरी तरह से जो गाड़ियाँ आ रही हैं, ट्रक आ रहे हैं या जो भी गाड़ियाँ आ रही है उसकी जाँच करिए, क्योंकि इस तरह से अगर शराब बिहार के अंदर आ रही है और खास करके इस तरह की जो मौतें इन जिलों में हो रही है, क्योंकि पिछले सप्ताह ही बेगूसराय में भी 8 लोगों की मौत हुई थी जहरीली शराब से। तो इस तरह के मामले जो अलग अलग जिलों से आ रहे हैं वो लोकल एरियाज में जो शराब बनाए जा रहे हैं उनसे हो रहा है। तो इसमें निश्चित तौर पर जो वहाँ के लोकल थाना है वहाँ पर कहीं ना कहीं कार्रवाई देने की ज़रूरत है, क्योंकि लोकल थाना अगर इस पर सख्त नहीं होता है तो फिर लोकल लेवल पर ये शराब बनती रहेगी और लोकल शराब पीने से लोगों की इसी तरह जान जाती रहेगी। तो ये सवाल है और विपक्ष अगर इस मुद्दे पर सरकार को घेर रही है तो ये कहीं से भी गलत नहीं होगा। Absolutely. This is very important what he says, that essentially till it is prohibited at the grassroots level itself, you can stop the manufacture of spurious liquor. You cannot crack down on this parallel economy which has now been set up with illegal liquor. Thank you so much for joining us, Aditya, as well as Saket, with all those details. We'll keep coming back to you and demanding accountability